So the next part of current web technology trends is popular server OS. Now popular server OS divided into three main parts. Basically, Linux distribution, for example, Ubuntu etc., and Microsoft Windows Server and Oracle Solaris. Next is some of the preferred web server packages are the web server packages are Apache Server, Microsoft Internet Information Server (IIS), which is very famous, and the third one is Google Web Server. Hardware ports, you all know that hardware is very necessary for the connectivity of the servers. Number one is it is used to connect external devices to the computer, and these devices communicate with the computer use these ports through the ports. बेसिकली हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होनी चाहिए, जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं मेरे, तो मुझे सर्वर के साथ कनेक्ट करने तो मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल पोर्ट्स के साथ उसे कनेक्ट करूँगा। इसके अलावा कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ लिंक कर सके, ताकि वो अच्छी सी कम्युनिकेशंस कर सके, अच्छे से हमारी प्रोसेसिंग कर सके, अच्छे से हमारी स्टोरिंग कर सके, अच्छे से हमें सर्विस प्रोवाइड कर सके। Now the third one is software ports. It is used to connect a client computer to a server to access its service like HTTP, FTP, SMTP, and etc. To distinguish the port, the software port are given unique numbers. The purpose of the software port is to identify different services like email, file transfer, etc. for running on a single server computers. Software ports is a 16-bit number which, when added to a computer's IP address or URLs, can be used for communication with a particular service available on that server. For example, HTTP used as a protocol, www.google.com or used as a domain name, in or 80 is a port number. Any question here? Some well-known ports and the associated services are 20 and 21 used as a FTP, 22 used as SSH, 25 used as SMTP, 53 for DNS, 80 is used as HTTP, 110 POP3, 44 443 used as a HTTPS. The first step is setting up a website, is planning the website for the web for sorry, the first step is setting up a website is planning the web pages for the website. Basically, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि मैं किस चीज़ की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपके पास जो है वो डेटा है कि आपको डेटा कैसे रखना है। लेट्स सपोज होम पेज होना चाहिए, आप अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाएं तो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। इसी तरह आपके पास एग्जामिनेशन का पोर्टल जो है वो आपके पास एक वेब पेज अलग बनना चाहिए। उसी वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज आप बनाएंगे आप एडमिशन्स के लिए, एंड सो ऑन। तो आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। देन पॉपुलर वेबसाइट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं जो कि मोस्टली तौर पे आजकल यूज़ होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ब्लूफिश पे काम हो रहा है, बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा, एडोब ड्रीमवीवर के थ्रू हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, और आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर ऑफ वेबसाइट्स वालों को। ठीक है, नेक्स्ट HTTP. Now what is HTTP? HTTP stands for Hypertext Markup Language. It consists of tags and its attribute used for format web pages. Number two, static web pages. Basically, HTTP is divided into two main parts. One is used as a static web pages, and
number second one is used as a dynamic web pages. So static web pages is a web pages that remain the same all the time until their code is changed manually. कोई भी चीज अगर आपको स्टैटिक में करनी है वो मैनुअली तौर पे होगी, डायनामिक तौर पे नहीं होगी. इट इज क्रिएट यूजिंग HTML. नाउ सेकेंडली डायनामिक वेब पेजेस, द वेब पेजेस दैट कंटेन्स सर्वर साइड कोड. अब हम बात कर रहे थे स्टैटिक में कि चीज़ें चेंज होंगी मैनुअली तौर पे, आप एडिट करेंगे, आप चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे, आप एक्सटेंसिबिलिटी लगाएंगे, आप जो है उसे रिड्यूस करेंगे, ये सब आप मैनुअली तौर पे कर रहे हैं. अब बात हो रही है डायनामिक वेब पेजेस की. डायनामिक में क्या हो रहा है? सर्वर साइड कोड विच क्रिएट अ वेब पेजेस ईच टाइम इट इज एक्सिस्ट आर कॉल्ड डायनामिक वेब पेजेस. ऐसे वेब पेजेस जो कि डायनामिकली एक्सटेंड होंगे, एक्सटेंसिबल होंगे, बट कैसे? सर्वर साइड कोड के थ्रू. सर्वर साइड के थ्रू लेट सपोज हमने PHP पे काम किया और उसके साथ डेटाबेस कनेक्ट कर दिया. डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद लोग उस पर रजिस्टर होते जा रहे हैं. कल 10 लोग रजिस्टर हुए थे, आज 12 लोग रजिस्टर हुए, तो वो क्या हो रही है? एक्सटेंसिबिलिटी हो रही है. ठीक है. Now the second point is program code that runs on the server is called server side code. For example, PHP, ASP, JSP, and so on. Next is a script. Now what exactly the script is? These are program code written inside HTML page. जैसे हम जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट किया था अपना जावा स्क्रिप्ट और थोड़ा बहुत काम किया था उस पर, उसके बाद से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई और मिड के एग्जाम आ गए थे. तब हम जावा स्क्रिप्ट पे काम करते, हम उसे क्या कहते थे? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते थे, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते थे. सही है. तो यहाँ पर हम अपनी जितनी भी हमने जावा स्क्रिप्ट पे काम किया था, जो बेसिक बेसिक कोड किए थे, वो सारे के सारे हमने किस बेस पर किए थे? वो किए थे हमने HTML बेस पे. तो आपको याद हो तो हमने कुछ HTML जो है वो ऊपर हेड के अंदर बनाया था जावा स्क्रिप्ट के लिए, कुछ हमने बॉडी के अंदर बनाई थी. तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है. दीज आर कोड रिटन इनसाइड HTML that is called scripting language, यानी कि scripting programming language. They are written using a text editor like Notepad. जैसे हम नोटपैड पे काम कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने नोटपैड प्लस प्लस पे काम किया था. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, VB Script, PHP, Perl and so on are used to create dynamic web pages. ये भी मोस्टली तौर पे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डायनामिक वेब पेजेस के लिए. जो हमारे पास स्लाइडर्स वगैरह नज़र आते हैं हमें जावा स्क्रिप्ट पे बने हुए किसी भी HTML की पेज पर या वेबसाइट के अंदर, तो हमें वो जो नज़र आते हैं हमें स्लाइडर्स के तौर पे जो चीज़ें हमें नज़र आती है, जैसे फर्स्ट पेज, होम पेज पर, इंडेक्स पेज पर, वो सब स्क्रिप्टिंग के थ्रू यानी कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती है. नाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एन HTML पेज, आर स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट इज रिटन इनसाइड स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा था. Script tag is used to embedded to refer to an executable script within a HTML document. It has the attribute types and src source type. Attribute is used to identify the scripting language code embedded within the script tag. ठीक. और SRC यानी कि source attribute is used to specify the URL of an external file containing script code to be linked to our web pages. हमने मोस्टली एक एक्सटर्नल पेज बनाया था, एक एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग का काम किया था जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, और एक हमने इंटरनल काम किया था. इंटरनल जब हमने काम किया था तो हमने स्क्रिप्ट का टैग के अंदर यूज़ किया था. ठीक है. हेड के अंदर और बॉडी के अंदर. सेम एज जब हमने एक्सटर्नल काम किया था, जब हमने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की फाइल .js से सेव करके हमने अलग पेज पर और फिर से लिंक किया था कि HTML के साथ. तो जब हम HTML के साथ से लिंक कर रहे होते हैं तो हमें सोर्स देना पड़ता है कि उस पेज का सोर्स क्या है. जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट के टैग के साथ एक एग्जांपल लिखी हुई है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट. ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है टेक्स्ट फॉर्मेशंस पे. सोर्स इसकी क्या है? सोर्स इसकी है स्क्रिप्ट कोड .js. यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज. नाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
Scripting language is divided into two main parts. First one is client side scripting language and the second one is server side scripting language. ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम क्लास में. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी? जो कि थी हमारी जावा स्क्रिप्ट, जिस पर हमने काम किया था. ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क एट द क्लाइंट साइड and is execute in the browser. Since the script code is execute on the client browser, it provide a quick response to the users. ठीक है, इसका disadvantages क्या है? Disadvantage क्या है? There are browsers that do not support scripts. In some cases, user may turn off the execution of a script in the browsers. For example, JavaScript, VB script. It is mostly used for validations and also for performing सिंपल कैलकुलेशंस. हमने जब क्लाइंट साइड यूज किया था तो क्लाइंट साइड पे हमने जावास्क्रिप्ट यूज की थी. जावास्क्रिप्ट में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज किया एज अ प्रैक्टिकल तौर पे. ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है जो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल यूज किया था वो मोस्टली किस चीज के लिए यूज किया था? कुछ सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया था जिसमें हम प्लस माइनस कर रहे थे और हमने जो है वो स्वैपिंग की थी, और कुछ जो थी वो वैलिडेशंस के थ्रू थी, यानी कि लिंकिंग करने के लिए. और जैसे अभी हम आगे करने जा रहे हैं, मैं कुछ आपको कोड्स बना के दूंगा ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सकें घर पे बैठ के, जिसमें हम स्लाइडर्स वगैरह बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू और से कनेक्ट करेंगे एक HTML के पेज के साथ. तो उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की करेंगे, इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह से सेट करेंगे, वो सब हम प्रैक्टिकली तौर पे सीखेंगे. Next is server-side scripting language. What is server-side scripting language? It is used to create dynamic web pages and are executed in the servers. For example, the script are executed at the server. The type of version of the browser or OS on the client computer does not affect its executions. For example, PHP, Perl, ASP, JSP. अगर आपको याद हो तो हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया था जिसमें हमने ASP को यूज़ किया था. ASP, और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, और ये सारे नोट्स जो है वो मिड के एग्जाम में आने वाले भी थे और हमने डिस्कस किया था इसको सर्वर साइड को. तो उसमें हमने ASP को यूज़ किया था. ASP की कैसे हमने वैसे इसकी प्रैक्टिकली तौर पे काम नहीं किया था, बट फिर भी हमने इसकी थ्योरी देखी थी कि ASP कैसे काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है एज अ डायनामिक वेब पेजेस के तौर पे. ठीक है, और कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करता है थ्रू डेटाबेस एंड अदर्स. नाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? नंबर 1 इज जावास्क्रिप्ट, नंबर 2 इज VB script, नंबर 3 इज PHP hypertext preprocessor, ASP active server page, and JSP Java server page. Now JavaScript. It is a client-side scripting language used to make web pages interactive. It was developed by Brendan Eich while he was working for Netscape Communication Corporation. It is implemented as an इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे हमने डिस्कस किया था. नाउ कोई मुझे ये बताएगा कि इंटरप्रेटर और जो है कंपाइलर में क्या फर्क है? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड जी समद? सर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है और कंस्ट्रक्ट और वो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट क्रिएट करता है फिर कंपाइल करता है. सही, वेरी गुड, थैंक यू. अब हम ले लेते हैं, मुझे कोई ये बताओ कि इंटरप्रेटर पे हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और कंपाइलर पे हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं. प्लीज रेज योर हैंड प्लीज. जी समद बताएं. सर पाइथन और PHP इंटरप्रेटर और कंपाइलर के लिए जावा बेस्ट एग्जांपल है. हाँ, जावा बेस्ट एग्जांपल है कंपाइलर्स के लिए, एंड C++ एंड C आल्सो एक्सेट्रा. यस सर, एंड और PHP और पाइथन सर इंटरप्रेटर. पाइथन इज very powerful interpreter as a interpreter language. Yes, thank you so much, Samad. Thank you sir.
Now the next is JavaScript. It is a popular as a client server scripting tool and work is almost every browser. It can be inserted inside HTML code or can be written as an external file and then included inside HTML files. The extension name JavaScript file is .js. It is tool for validation of form in the client side and also be used for performing simple calculation and also for bringing animations just like sliders to our web pages. Now the third one is PHP. It stands for Hypertext Preprocessor. It is an open source general purpose scripting language that is suited for web developer. It can be embedded into HTML code. It is a server side scripting tool and its code is similar to Java, C and Perl. Its main objective is to develop dynamic web pages at ease. जी पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं जी जिब्रान बताइए अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने पूछना सलाम था जैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फाइल्स बनाते हैं हमारी HTML के लिए index.html है, CSS के लिए हमारी एक style.css है जो स्टैंडर्ड बनाते हैं। जी इस तरह जावास्क्रिप्ट के लिए कौन सी मतलब हमारी .js की कौन सी स्टैंडर्ड फाइल यूज होती है? हम JS के नाम से बनाते हैं एक फाइल और फिर इसके अंदर जितने भी हमारे पास JS के नाम से फोल्डर बनाते हैं फिर इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है .js करके सेव करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे होता है। जैसे कि HTML के लिए हम HTML लिखते हैं, CSS के लिए CSS लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट के लिए JS। नाम उसका क्या होता है? जैसे हम index.html लिखते हैं, style.css इस तरह नाम क्या होता है उसका? आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ये नेसेसरी थोड़ी है। अब .js आपको लगाना नेसेसरी है क्योंकि .js वैसे बाजू का जब भी मैंने कोई भी वेबसाइट्स वगैरह देखी है तो उसमें script.js लिखा हुआ होता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो script.js के साथ यूज करते हैं। जैसे कि स्टाइल के साथ आपने कहा ना CSS में यूज होता है और HTML के साथ, हाँ तो index.html के साथ यूज होता है। तो स्क्रिप्ट के साथ मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोगों ने उसको सेव किया है एज अ फर्स्ट फाइल के तौर पे script.js। थैंक यू सर। Now the next one is PHP. It was originally created by Resman Ledoff in 1994, but it is now developed by the PHP group. The web page file that contain PHP code have the extension .php. जैसे हमारे पास था js.js, इसी तरह हमारे पास है .php। और जब हम HTML की फाइल्स बनाते हैं तो .html और htm, और जब हम CSS की फाइल बनाते हैं .css। ठीक है, इसी तरह PHP की फाइल के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है .php। लॉर्डॉफ ने बनाया था 1994 में। ये काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर फाइल आपको प्रॉपर्ली तौर पे ना भी मिले तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। PHP कोड इज इंसर्टेड इनसाइड HTML कोड। अब इसके लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से इसे लिखा जा सकता है। सबसे पहली चीज, इंसर्टेड इनसाइड HTML कोड। व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट फॉर HTML PHP web pages, it is interpreted and executed on the web server. One of the strongest and most significant feature in PHP is its support for database programming। जैसे कि आप MySQL यूज करते हैं इसके साथ, सही है, तो बहुत आसानी से आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगी। और आपका अगला से अगला लेक्चर यानी कि 2 वीक के बाद जो हम लेक्चर यूज़ करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली तौर पर डेटाबेस की कनेक्टिविटी, किसकी कनेक्टिविटी किसके साथ, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सबसे स्ट्रांग है और क्यों, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस आल्सो। द मोस्ट कॉमन डेटाबेस यूज्ड विद PHP इज MySQL, जैसे कि एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। Cascading style sheet, CSS. Using CSS we can control the color or color of the text, style of font, spacing between paragraphs, column and size, border and colors, background images, and etc. Now there are three different ways how we can write
CSS or how we can implement CSS. Number one is inline style, जो कि हम लाइन के अंदर लिखते हैं. Same as embedded, जो कि हम कहते हैं कि इंटरनल, जिसे खास तौर पे कहा जाता है इंटरनल, जो कि हम हेड के अंदर लिखेंगे. और थर्ड वन इज लिंक्ड, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, जो कि हम CSS के एक्सटेंशन के साथ लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है कि CSS की इन 3 डिफरेंट वेज में? नो. चलिए मूव करते हैं फर्दर. Basic concepts of HTML documents. The most widely used language to write web pages. It is not a programming language. Make sure it is not a programming language. It is a hypertext markup language. It is not a case sensitive language. आप इसे अगर जैसे मैंने ऊपर लिखा HTML स्मॉल में और नीचे जाके मैं उस टैग को क्लोज कर रहा हूँ HTML कैपिटल में, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली चल जाएगा. कभी भी हमें एरर प्रोवाइड नहीं करेगा इस टाइप की चीज़ों के अंदर. क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है. ठीक है, नॉट अ केस सेंसिटिव. Each HTML file is a plain text that define a set of command for creating hypertext document. These commands are known as HTML tags. Now tags की बात हो रही है. हमें पता है कि HTML हमें दिया किसने? हमें HTML टिम बर्नर-ली साहब ने दिया था 1989 में स्टर्न के मुकाम पर, और इनकी थीसिस पे था जो कि हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं. बाद में वो स्टैंडर्ड बना 1994 में, जो कि W3C ने लिया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने. ठीक है, जो जिसमें वो स्टैंडर्ड को फॉलो करवाते हैं हमसे. सारी की सारी HTML की पेजेस, वेबसाइट सारी की सारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलती है, जो कि स्टैंडर्ड सेट किया हुआ W3C ने. Next, the HTML file must be saved with HTML or HTML, as we already discussed. HTML page are viewed with the help of software called web browsers. Popular web browsers are, हमें हिस्ट्री भी पता है. लास्ट क्लास में हम जब बल्कि आप लोगों ने मुझे क्विजेस भी दिए हैं, तो मैंने आपके क्विजेस चेक करके दिए, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर्स पे. तो आप लोग ने मुझे उसके ईयर्स के साथ बताया था कि कौन सा वेब ब्राउज़र ईयरली आया था. तो कोई मुझे बताएगा सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? क्लास, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? एनीवन है? किसी को नहीं याद पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? सबसे फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो था वो HTML का अपना खुद का था, जो कि टिम बर्नर-ली ने बनाया था. तो हमने सबसे पहले से देखा था कि HTML के नाम से उसे लॉन्च किया गया था, यानी कि वेब के नाम से लॉन्च किया गया था, www के नाम से लॉन्च किया गया था. ठीक है, www वेब ब्राउज़र के नाम से सबसे फर्स्टली हमारा. इसके बाद हमारे पास कुछ मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. फिर इसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है नाउअडेज, एंड ओपेरा एक्सेट्रा. टैग्स की बात करें तो टैग्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं. पहला जो है वो है कंटेनर टैग कहा जाता है, और दूसरा जो है वो एम्प्टी टैग कहा जाता है. कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिसकी क्लोजिंग होती है. एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिसकी क्लोजिंग नहीं होती. फॉर एग्जांपल, कंटेनर टैग आपके सामने एग्जांपल्स आप देखिएगा, HTML और वो HTML क्लोज हो रहा है. हेड अगर हमने ओपन किया तो हेड क्लोज हो रहा है. बॉडी अगर हमने ओपन की तो बॉडी क्लोज हो रही है. अब हम बात करते हैं हमारे एम्प्टी टैग की. एम्प्टी टैग देखें, आपके पास एग्जांपल में लिखा है BR, इसकी क्लोजिंग की नीड नहीं है. फ्रेम जब हम ओपन करते हैं तो इसकी क्लोजिंग की नीड नहीं है. हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ओपन करते हैं तो उसकी क्लोजिंग की नीड नहीं होती. जब हम इमेज को जो है वो प्रिंट करवाते हैं अपनी वेब पेजेस पे, उस पर हमें जो है इसकी नीड नहीं होती इमेज की क्लोजिंग की. तो ये जो हमारे पास टैग्स हैं उसे कहा जाता है एम्प्टी टैग्स. और पहले वाले जो टैग्स हमारे पास है जिसकी क्लोजिंग होती है उसे कहा जाता है कंटेनर टैग्स. यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन? चले, कोई बात नहीं. Attributes. Now, what exactly the attribute is? An attribute is a special word used inside the tag to specify additional information such as color, alignment, background, etc. For example, background BG color,
टाइप, अलाइन एंड एक्सेट्रा। तो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन कौन से होते हैं जो हम यहाँ पर जैसे लिखे हुए, फॉर एग्जांपल आप देखें तो बैकग्राउंड लिखा हुआ, अगर मैं एक वेब पेजेस पे CSS के थ्रू जो है उसमें बैकग्राउंड का कलर देना चाहता हूँ, भले वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो या इनलाइन हो, पर अगर मैं उसे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो आप जो मैं बैकग्राउंड वर्ड यूज करूँगा दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर कॉलन लगा के जो सेपरेट करने के बाद मैं इसे असाइनिंग दूंगा कोई भी, उसे कहेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर कॉलन, कॉलन के बाद कॉलन मतलब असाइनमेंट के लिए, और फिर इसके बाद जब मैं उसके बाद कलर दे रहा हूँ, जैसे कलर का नाम दे दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, दैट इज वैल्यूज। नाउ 3 मेन लिंकिंग कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरलिंक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 3 मेन लिंक्स आ जाते हैं कि कैसे हम उसको लिंकिंग करते हैं, लिंक करने के तरीके, जिसमें हमें कलर शोज किए जाते हैं। कलर हमारे सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाते हैं। कुछ कलर जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ पर्पल होता है। तो वो लिंक जो है वो ब्लू होती है, तो उसका पर्पस क्या है उसे हम डिस्कस करते हैं। लिंक, अगर पहली बात, इट स्पेसिफाई द कलर ऑफ हाइपर लिंक दैट आर नॉट विजिबल। जब भी हम ब्लू कलर की बात करते हैं, ऐसा हाइपर लिंक जो कि विजिटेड ना हो, सॉरी विजिबल बोला मैंने, सॉरी विजिटेड ना हो, वो हमारी क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी लिंक्स होती हैं, जो कि ब्लू कलर में हमें नजर आती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, it specify the color of hyperlinks that are not visited by the viewer। उन्होंने क्लिक नहीं किया हुआ, that is, और वो जो होगा बेसिकली डिफॉल्ट कलर जो होगा उसका ब्लू हो जाएगा। एंड दिस सिनेरियो कॉल्ड एज अ लिंक। अब ए लिंक क्या होता है? इट स्पेसिफाई द कलर ऑफ द एक्टिव हाइपरलिंक, जो कि अभी एक्टिव है। द लिंक रिमेन एक्टिव ओनली फॉर द मोमेंट दैट माउस इन क्लिक ऑन इट। जब तक हम उसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, जब हम उस पर क्लिक करे जाते हैं, मोमेंट जब हमने उस पर क्लिक कर दिया तब तक वो, हाँ, हम जब तक उसको विजिटिंग करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तब तक वो ग्रीन कलर होगा। द डिफॉल्ट कलर इज ग्रीन, जब तक वो ग्रीन कलर का होगा। द सिनेरियो इज कॉल्ड अ ए लिंक। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर की जो हमारे पास एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जो नज़र आ रही होगी हमें, वो हमारी होगी ए लिंक। तो अगेन रिपीट करते हैं, जब हमारे पास ऐसी लिंक नज़र आए जो कि ब्लू कलर की हो, जो कि कभी भी विजिटेड नहीं होती, इसलिए वो ब्लू कलर की होती है, उस सिनेरियो को कहा जाता है लिंक। और जब हमारे पास ग्रीन कलर की लिंक हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब हम रिमेन एक्टिव हैं उस पर, उस लिंक के ऊपर जो हमने क्लिक किया हुआ है, तो उसका कलर ग्रीन होता है और उस पूरे सिनेरियो को कहा जाता है ए लिंक। एंड द थर्ड वन इज वी लिंक। वी लिंक का मतलब ये है इट स्पेसिफाई द कलर ऑफ द हाइपर लिंक विच इज ऑलरेडी विजिटेड। जब हम देखते हैं ना कि गूगल, जब हमने गूगल के थ्रू कुछ चीज़ें सर्च किया हुआ, सर्च इंजन के थ्रू हमने सर्चिंग की हुई है, तो कुछ हमारे पास लिंक्स आती हैं जो कि ब्लू कलर की होती है, इसका मतलब वो हमने कभी विजिट नहीं की। कुछ लिंक्स होती है जो कि पहले से ऑलरेडी पर्पल हमें नजर आ रही होती है, तो वो जो लिंक पर्पल नजर आ रही थी उस लिंक को कहा जाता है वी लिंक, क्योंकि हम उसे विजिट कर चुके हैं। और जिस पर हम एक्टिव होते हैं और उसे हमने रिमेन क्लोज नहीं किया हुआ, उस पर हम एक्टिव है अभी तक, क्लिक करने के बाद तक, उस लिंक को कहा जाता है ए लिंक, और वो लिंक हमेशा ग्रीन कलर में होती है। अब बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट करंट टेक्नोलॉजी, जिस पर हमारा आज का टॉपिक बेस्ड कर रहा था, क्योंकि पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी ज़रूरी थी, मिस हो गई होंगी काफ़ी दिनों से, बहुत टाइम से यूनिवर्सिटी ऑफ है और हमने क्लासेस नहीं ली हैं। तो हमारे पास करंट वेब टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या क्या है? अगेन ज़रा फोकस कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू गिव यू फोरसाइट। बेसिकली हमारे पास टॉप 8 वेब डेवलपमेंट ट्रेंड्स हैं जो कि 2019 टू 2020 के अंदर वेब इंडस्ट्री ने ज़्यादातर यूज़ किया है, या फिर वो अभी यूज़ कर रही हैं, या फिर उस पर रिसर्चेस अब तक चल रही हैं। ठीक है, तो वो करंट वेब टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर 2019 टू 2020। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो है एआई और बूट्स का। एआई के थ्रू हम जो है अपनी वेब को कनेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है हसीब ने ये बताया था कि एआई के थ्रू हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम डिज़ाइन करके एक पेपर पर दे देते हैं और उसकी पूरी की पूरी हमें वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करके मिल जाती है। तो डिज़ाइनर के लिए ये चीज़ बड़ी आसानी हो गई कि वो अब सिर्फ ड्रॉ करके
सिस्टम को देंगे और हमें डिज़ाइनिंग की पूरी कोडिंग उस पर बेस्ड करके मिल जाती है। तो वो सब कुछ एआई के थ्रू, सेम एज जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिव रिसर्च जो अब हो रही है करंट वेब टेक्नोलॉजी के अंदर वो हो रही है जावास्क्रिप्ट पे, ताकि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को जो है वो और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए in terms of security, in terms of efficiency, in terms of accuracy, उसके लिए। थर्ड वन इज प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जो वेब की एप्स है। जैसे कि हम अपाची की बात करते हैं तो अपाची हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हम एप्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अब यहाँ पर वेब ऐप की बात हो रही है, हम वेबसाइट की बात नहीं करें। वेब की कनेक्टिविटी हम एप्लीकेशंस के थ्रू करें ताकि एक ही चीज़ बने और दोनों तरह की यानी कि हाइब्रिड तौर पे वो दोनों तरह पर चल सके। तो इसके थर्ड जो सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर हो रही है। फोर्थली सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जा रही है अब जो कि सिंगल पेज पर काम करें। हमने सिंगल पेज वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये जो है 2000 के एरा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी सिंगल पेज वेबसाइट, सिंगल पेज वेबसाइट्स। तो इस तरह से अब जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो है सिंगल पेज एप्लीकेशंस। द फिफ्थ वन इज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, मोबाइल बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसी वेबसाइट जैसे कि हम एप्लीकेशन, हर चीज़ को यूज़ करने के लिए हम एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं या एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, उस पर रिसर्च चल रही है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाई जाए ताकि लोग वापस वेबसाइट्स के पास आ सकें, यानी कि वेबसाइट पर आ सकें। मोशन यूआई, एआई जो है वो मोशन बेस्ड हो। फिर हमारे पास आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए वेब के साथ ताकि हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाए। किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर्स के लिए और फॉरेंसिक्स के लिए, और इसके अलावा लॉ ऑफ कोर्ट के लिए। यहाँ पर हमारे पास इसे स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ये भी करंट ट्रेंड है। एंड द लास्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा रिसर्चेस होने वाली 2019 के अंदर जो है वो एआई के बाद साइबर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और अगर आप रिसर्चेस करना चाहते हैं और अगर मैं आपको फाइनल के लिए पेपर में रिपोर्ट्स राइटिंग दूंगा तो मेरा टारगेट ज़्यादातर यही होगा, या तो ये होगा या फॉरेंसिक्स के ऊपर होगा या फिर एआई और बूट के ऊपर होगा। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड द लास्ट स्लाइड इज बेस्ड ऑन our last slide based on 9 web technology every web developer must know in 2020। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इन 2020 में कि वो कौन सी 9 वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डेवलपर को पता होनी चाहिए। ब्राउज़र्स क्या हैं और ब्राउज़र की हिस्ट्री क्या है, और आने वाले आने वाले जो ब्राउज़र्स है उन पर किस किस ब्राउज़र्स पे रिसर्चेस चल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, HTML और CSS, जैसे HTML5 आ गई, CSS3 आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका एंड है। आपने देखा है कि कितने साल से ये चेंजिंग होती जा रही है और इसको और इन्हांस करने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है। तो हमें उस रिसर्चेस को भी पढ़ना पड़ता है 2020 डेवलपर के तौर पे। ठीक है, तो इस ये सेकेंडली। फिर थर्ड हमारे पास है वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, जस्ट लाइक एंगुलर express.js जिस पर काम हो रहा है। अब वेब पेज एंगुलर आया तो एंगुलर ने नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आप इस तरह से भी अपनी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट हो सकता है कि रिसर्चेस आने वाली इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इससे ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि एंगुलर आपको बहुत आसानियाँ फराहम करता है बनिस्बत जो पुराने वाले, अगर हम प्रीवियस अपने वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स देखें तो आने वाले और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सेम एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे TCP, IP और UDP, ये सारे के सारे जो है प्रोटोकॉल्स। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, APIs के ऊपर आपको API क्या है, API कैसे यूटिलाइज की जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डेटा फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, जैसे कि JS जो आपके हो गए, CSV फाइल्स हो गई, और इसके अलावा अगर इमेज की हम बात करें, फॉर्मेट की बात करें इमेजेस पे, तो हमारे पास PNG फाइल्स हो गई। तो ये आपके एक्सटेंशंस आपको पता होने चाहिए, फॉर्मेट्स पता होने चाहिए डेटा के, जो भी डेटा आप कवर करते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड कितनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं और कौन कौन सी आ रही हैं ट्रेंड पे। जैसे कि अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जूलिया भी आ चुकी है। हम ये सोचते थे कि पाइथन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी, बट जूलिया आ चुकी है और जूलिया के सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्जन्स भी आ चुके हैं, जो कि बड़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है, उस पर काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमारे पास है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कौन कौन सी आ चुकी हैं
किस पर रिसर्चेस हो रही हैं और कौन सी आगे आएंगी। ठीक है, तो ये आपको 9 टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद इसको सेशन को एंड करते हैं। ठीक है जी, हसन बोले। सर मुझे ये पूछना था, ये फ्रेमवर्क्स और एपीआई सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें डीपली कि सर होते क्या हैं ये। बेसिकली फ्रेमवर्क्स वो होते हैं जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो भी होती है हमारी वो होती है फ्रेमवर्क्स। स्टार्टिंग कैसे लेनी है, आइटमाइज कैसे करना है और लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है, वो फ्रेमवर्क है। लेट सपोज स्टार्ट अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा की गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग करने के बाद स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारी इसकी प्लानिंग होगी, फिर इसकी डिजाइनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फिर इसके बाद हमारे पास होगा उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। इस तरह से पूरा सिनेरियो चलता रहेगा। तो फ्रेमवर्क आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स देता है या पर्टिकुलर जो है वो आपको बताता है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप आना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं फ्रेमवर्क्स। एपीआईज आपको क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आप किसी से हेल्प लेते हैं बट उससे कभी डेटा शेयर, आपकी डेटा शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, तो एपीआईज और फ्रेमवर्क्स में एग्जांपल दे सकते हैं? एपीआईज हमारे पास है ना, गूगल की एपीआईज हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया। तो गूगल मैप से हम अगर लेट सपोज मैं बना रहा हूँ एक इमरजेंसी सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, वहां पर मुझे एपीआई चाहिए होगी क्योंकि गूगल ट्रैक करेगा ना कि कहाँ पे कैजुअलिटी हुई है और मुझे कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो हेल्प लेनी होगी वो एपीआई की लेनी होगी। मैं कुछ पे करूंगा गूगल को, गूगल मुझे गूगल मैप प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,